Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello to each and every one of you, and I hope you are doing good. बाकी आपके फैमिली में भी बाकी के सभी लोग बढ़िया रहेंगे. ओके, आज मुझे आपका दिन बढ़िया कैसे करना है, एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से कर पाऊँ तो आप ये जो चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो 12वीं में महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में पूछा जाता है, सदियों से पूछा जा रहा है. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो करीबन 22 साल पहले जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो भी ये चैप्टर था. 22 साल बाद जब आप हो तो आप भी ये चैप्टर सीख रहे हो. ओके, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो लास्ट टाइम का चैप्टर है, जो क्या होता है, कुछ इस तरह होता है. ये पूरी कहानी आपको पता है. कहानी अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, आपको पिछले लेक्चर्स देखने चाहिए. पिछले लेक्चर्स देखने के बाद, समझने के बाद यहाँ पर आपको आना चाहिए. ओके, तो डायरेक्टली जंप मत करना. कुछ होते रहते, कुछ बच्चे ना, कुछ लोग नॉवेल लिया, फिर सस्पेंस वाली नॉवेल है, एक काम करते यार, लास्ट के पेज पे जंप मारते, सेकेंड लास्ट पेज पे, क्या है ना, पता चल जाएगा. ओके, कि भाई कत्ल किसने किया है. तो ऐसे मत बनो यार. ओके, शुरुआत से पढ़ना, मज़ा कुछ अलग होता है. ओके, आज के हमारे कहानी के पात्र कौन है. एक सेलर होगा, एक बायर होगा, एक ड्रॉवर होगा, एक ड्रॉई होगा. बाद में हमको पता चलेगा कि हम कौन हैं. आमिर सोल्ड गुड्स टू जूही. समझ में आ गया. आमिर सेलर, जूही बायर. आमिर ड्रॉवर, जूही ड्रॉई. ग्रेट. लास्ट का लाइन, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आमिर. ओ, हम आमिर है, बढ़िया है जी. ओके, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, हम काम भी बढ़िया करेंगे इसके अंदर. ओके, सो तैयारी में कुछ चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है. एक तो 2 पेज का जर्नल, ऊपर लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ आमिर, एंड इन अ रफ वर्क समवेयर आपको सेल्स, कैश, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट, और थोड़े ही डिस्टेंस पे जूही. ओके, अगेन ये हस्बैंड वाइफ नहीं है. ओके, सो प्लीज़ गलत फहमी मत रखना. बट येस, अपने ज़माने में एक बॉलीवुड का जाना पहचाना कपल, ओके, जो काफ़ी पिक्चर्स इकट्ठे सुपरहिट दिए थे. ओके, मम्मी पापा को पूछ लेना, उनके ज़माने में ये हुआ था. ओके, सो वी आर गोइंग टू थिंक दैट वी आर आमिर एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द सम. द लास्ट प्रॉब्लम आई इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट and the procedure of renewal. बराबर. Today I will again do it, and even in the next lecture and for many lectures to come, because it is a very अहम मुद्दा, point of every problem.
चलिए भाई शुरू तो कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा जी? आमिर, मैं सोल्ड गुड्स टू जूही ऑफ 50,000। फुल स्टॉप, रुक जाओ। गुड्स बेच लो। चलिए भाई, बढ़िया है, गुड्स बेच लेते हैं। जूही को पॉइंट कर रहा है, हाँ तो फिर डेबिट कीजिए ना। सेल्स को क्रेडिट, क्योंकि सेल्स नॉमिनल होता है। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। रूल आपको कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपको पता होगा तो बढ़िया है जी, क्यों नहीं भाई? ओके, इसी आप जब भी कोई होटल में कोई फास्ट फूड जॉइंट पे कुछ खाने को जाते हो, खाने का तो आप मज़ा उठाते ही उठाते हो, लुत्फ उठाते हो, बराबर। बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि भाई आपको ये भी पता है कि ये बनता कैसे है। ओके, कभी वो होटल बंद हो गया ना कोविड के कारण, लगभग सारे होटल बंद थे। फिर क्या हो गया? सारा जो पकवान था घर ही पर बनने लगा, बराबर। इतने लोगों ने बेकिंग सीख लिया, इतने लोगों ने कुकीज, बिस्किट्स, केक्स बनाना सीख लिया। सो इट इज़ गुड दैट यू नो द रीज़न बिहाइंड। ओके जी, और क्या? आपने गुड्स तो बेच लिया, जूही जी को पैसे तो देने पड़ेगी। दिए कि नहीं दिए? ऊपर क्या बोला? जूही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर द सेड अमाउंट फॉर 3 months ड्रॉन बाय आमिर। अच्छा, पैसे नहीं दिए? नहीं दिए तो नहीं दिए, बिल एक्सेप्ट किया उन्होंने। चलो यार, बिल एक्सेप्ट किया का मतलब है पूरे पैसे बाद में दे देगी। होता है यार बिजनेस में। हमने बिल ड्रॉ किया, नो एंट्री। जूही जी ने बिल साइन किया, एक्सेप्ट किया और हमें लौटाया, जो हमने ले लिया। एक्सेप्टेड की एंट्री आपको करनी है, ड्रॉन की एंट्री कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। बट होता पहले ड्रॉन है, उसके बाद में एक्सेप्टेड। बिल रिसीवेबल टू जूही, दैट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड द एरोबाजी। ओके, ये हमारा सेकेंड एंट्री है, ये सबका सेकेंड एंट्री है। तो कर लेते पूरे 50,000 के लिए, पूरे 50,000 के लिए बीइंग बिल एक्सेप्टेड। नरेशन सिंपल शॉर्ट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, हमारे पास बिल है 50,000 का। बिल का ड्यूरेशन, बिल का महूलत, टाइम कितने के लिए? 3 महीने का है, 3 महीने का बिल है। तो 3 महीने के बाद ही हम पैसे जूही से मांग सकते हैं। बट अगर आपको पैसे अभी के अभी चाहिए तो आपके पास एक चॉइस है, आप ये बिल लेकर बैंक को बेच सकते हो। बैंक थोड़ा पैसा काटेगा, उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं, वो आपका नुकसान है, बट एटलीस्ट आपको 99% पैसा तो मिल ही जाता है। ओके, क्या कहा सेकेंड लाइन में? आमिर डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 10%, फुल स्टॉप। अच्छा, तो डिस्काउंटिंग किया? हाँ तो किया ना, बैंक को बेचा उसने बिल। अच्छा, तो वो दिखता कैसे है? देख भाई, बैंक आ गया, बिल उठा के बैंक को दे दिया। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो डिस्काउंट है, पास्ट प्रॉब्लम्स में हमने थोड़ा माइनस करके ढूंढा, आज 10% बोला, तो ये 10% ढूंढते कैसा है? आई रिपीट माई सेल्फ, आपको मैं एक अमाउंट दे रहा हूं बैंक का 48,750, बट द बड़ा सवाल इज, सर वो 48,750 कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन। वो अमाउंट बैंक ने हमको दिया, बट कैसे आया? डिस्काउंट आपको पता होना चाहिए। जो अमाउंट उन्होंने काटा, 10% काटा, कैसे ढूंढते? ओके, नो प्रॉब्लम, बता देता हूं, आप भी कॉपी कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है 8, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। हमने ये फाइनल अकाउंट्स में और काफी चैप्टर्स में ये यूज किया है। अमाउंट कितने का है बिल? 50,000। ओके, रेट कितना है? 10% बोला, चलिए 10%। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद लोग, बच्चे बाकी का काम भूल जाते हैं। सर 50,000 का 10% 5,000। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बिल कितने महीने का था? 3 महीना। किधर बोला था? अरे क्वेश्चन में तो बोला था 3 महीना। तो आपको 3/12 लिखना है। आपको हमेशा अमाउंट, रेट और टाइम, ये 3 मसाले कूट के डालोगे तो ही आपको डिस्काउंट सही से मिलेगा, अदरवाइज रॉन्ग मिलेगा। आई रिपीट, अमाउंट, रेट, टाइम। ओके, अगर आप सिर्फ अमाउंट और रेट लोगे तो पक्का वो गलत ही आएगा। ओके, ये फॉर्मूला है। आप थोड़ी शस्त्र क्रिया
ऑपरेशन मतलब क्या है, प्लस माइनस कैंसिलेशन, वो सब कर लो, आपको आंसर आएगा 1250। दैट 1250 इज द डिस्काउंट। इसके लिए मैंने आपको बोला कि 50,000 में बैंक ने आपको दिया 48,750। कैसे पता चला? डिस्काउंट पहला ढूंढना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं कि भाई मेरे जैसे आपको अंतर्यामी पहले ही पता चल गया, एंड यू विल गेट द डिफरेंस एज डिस्काउंट 1250। तो टिल लास्ट टाइम द डिस्काउंट वॉज गिवन इन अ डिफरेंट मैनर। टुडे मैंने परसेंटेज फिट किया, और वो परसेंटेज ढूंढने के लिए आपने 8 फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। प्लीज अंडरस्टैंड, हम 3 महीना क्यों लेते, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते डिस्काउंट बैंक पैसा क्यों काटती है। क्योंकि देखिए, मुझको रुकना था 3 महीना, बट जब मैं बैंक को बेच देता हूं, वो वेटिंग 3 महीने का बैंक को करना है। तो बैंक ऑब्वियसली बोलेगा यार अभी हमको वेटिंग करना है। वेटिंग फ्री का नहीं होता। अगर आप रिक्शा में, टैक्सी में, ओला में, किसी में भी बैठे हो और ट्रैफिक में फंस गए, मीटर चल रहा है, बट सर गाड़ी रुकी है, तो क्या हो गया? वेटिंग का चार्ज होता है। तो बैंक भी वेटिंग का चार्ज लेता है, नाम है डिस्काउंट 1250। दी एंट्री बैंक डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बीच में डिस्काउंट आएगा, उसको हम डेबिट कर लेंगे। एंट्री पुरानी है, एंट्री नहीं है, तो मैं इतना उस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा। मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मैंने वो डिस्काउंट कैसे ढूंढा। डिस्काउंट मैंने 8 फॉर्मूला की मदद से ढूंढा है। एंट्री आई होप आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो आपने यहाँ पे देख लिया और लिख लिया होगा। ओके, सो लिटिल डिफरेंट किया मैंने, क्योंकि हर सम रिपीटेटिव तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो नया सीखना है हमको। चलिए भाई, बिल बैंक के पास पहुंच गया। आगे की कहानी पढ़ लेते हैं आगे, तो ही तो पता चलेगा आगे की कहानी क्या है। सेकेंड लाइन, ऑन ड्यू डेट। अच्छा, 3 महीने 3 दिन बाद ड्यू डेट क्या है? अभी आप वो टेंशन मत लो, आपको तो 1 2 3 4 लिखना है। द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय जूही। ये डिसऑनर्ड का वर्ड ना कानों में अच्छा साउंड नहीं करता, क्योंकि बहुत कष्ट देता है। मतलब जूही ने पैसे नहीं दिए, वो बैंक गया उसके पास में 3 महीने बाद, 3 दिन बाद, जूही ने पैसे नहीं दिए, नखरे किए, वो रोने लगी, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। होगा यार, होता है, मैंने बोला है लास्ट टाइम भी ना। तो जब ऐसा होता है, डिसऑनर होता है, आगे पढ़िए, क्योंकि उस हिस्से का ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय जूही, आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। ओके, नो एक्शन, नो रिएक्शन, नो जर्नल एंट्री। आगे पढ़ो। जूही रिक्वेस्टेड आमिर, वो धोसने जमा रही है, आमिर रिन्यू कर। नहीं, आमिर प्लीज रिन्यू करो ना। 4 स्टेप स्टीवन सर ने पढ़ाया लास्ट टाइम, 4 स्टेप। ओके, रिन्यूअल में क्या होगा? थोड़ा पैसा जूही को बोला जाएगा अभी दो, बाकी का पैसा बाद में दो। तो बैंक खुश, हम खुश, जूही खुश, सब पार्टी लोग खुश खुश खुश। ओके, कितना पैसा अभी, कितना पैसा बाद में, पढ़ लेते, आगे पढ़ो। आमिर एक्सेप्टेड, थर्ड लाइन, ऑन द कंडीशन दैट, आमिर बोल रहा है देख जूही, आई एम एक्सेप्टिंग, हाँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड, शुड पे 30,000, 50,000, चलो डोंट पे दैट, पे 30 प्लस 12% इंटरेस्ट। लास्ट टाइम भी इंटरेस्ट था, आज भी इंटरेस्ट है, बट आज रेट है 12%। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस। क्या चक्कर है? वेरी सेम लाइक लास्ट टाइम, बट द ओनली लिटिल डिफरेंस इज आज परसेंटेज है, इंटरेस्ट का परसेंटेज, बट द जर्नल एंट्री माय गुड स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग नहीं है। देयर आर 4 जर्नल एंट्रीज जो आपको करने हैं जब आप रिन्यूअल के पोजीशन पे आते हो। पहले बिल कैंसिल करो, दूसरा आप इंटरेस्ट चार्ज करो, तीसरा आप वसूली कलेक्ट पार्ट पेमेंट करो, चौथा आप नया बिल बनाओ। 4 स्टेप्स, 4 जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में क्या दिया, कैसे दिया, उससे हमको कुछ नहीं करना, आपको वर्किंग करना है। ओल्ड बिल 50,000 का, उसके 2 हिस्से हो गए, एक तरफ कैश, एक तरफ न्यू बिल। हमने जूही को क्या बोला? 30,000, चलो भाई कैश के वहां पे लिखा 30,000, मतलब 20,000 न्यू बिल, वो समझ जाओ, कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट की दर अगर डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पढ़ लो ना,
क्या बोला ऊपर देखो, शुड पे 30,000 प्लस इंटरेस्ट 12% प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो कैश के नीचे आप इंटरेस्ट ऐड करो। बड़ा सवाल क्या, बट इंटरेस्ट है कितना, 12% कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी उन्होंने लड्डू पेड़ा दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ सो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट 8 फॉर्मूला, रिमेंबर 8 फॉर्मूला, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। कुछ लिखा मैंने यहाँ पे, ऑलवेज ऑन न्यू बिल अमाउंट। ये क्या है ऑलवेज ऑन न्यू बिल अमाउंट, यू सी जो आपको रेट दिखता है वो 12% दिया उन्होंने। टाइम मत बोलो सर 3 महीना लिखा था, नहीं माय डियर, बिल्कुल नहीं, ध्यान से पढ़ना। आमिर एक्सेप्टेड ऑन द कंडीशन दैट जूही शुड पे 30,000, तो वो हमने लिखा, हमारा ध्यान इंटरेस्ट पे है। 12% इंटरेस्ट, तो मैंने बोला रेट 12%, एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर 2 months। ऊपर पुराना बिल 3 महीना, अभी जो बिल बनेगा वो 2 महीना बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये नया बिल बनेगा 2 महीना, उसका मतलब क्या है, 2 महीने के लिए पैसा डिले हो गया, 2 महीने के लिए 20,000 डिले हो गया, इसके लिए आप इंटरेस्ट ले रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंड करना, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ी करते हैं। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्लीज नोट, इसके लिए वर्किंग दे रहा हूं, बराबर से कॉपी करो। ए अमाउंट है, वो अमाउंट कितना होगा, रेट 12%, टाइम 2 महीना, क्योंकि 2 महीने के लिए डिले हो रहा है और आगे पैसा जा रहा है। अमाउंट में हमेशा देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑलवेज ऑन न्यू बिल अमाउंट, ये जो है ना, ये कैलकुलेशन हमेशा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कैश के नीचे इंटरेस्ट है तो 30,000 पे होगा, बिल्कुल नहीं, क्या 30,000 डिले हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं 30,000 तो टाइम पे मिला, 20,000 डिले हुआ। ये जो नया बिल है ना, इसका जो वैल्यू है वो डिले होता है, इसके लिए इंटरेस्ट लिया जाता है हमेशा, कोई नई बात नहीं है कि नया बिल का ही अमाउंट डिले होता है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो कभी भी कैश का अमाउंट मत लेना इंटरेस्ट का हिसाब लेने के लिए, हमेशा और हमेशा नए बिल के अमाउंट पे उसको कैलकुलेट करना। मतलब 20,000 12% और 2 महीना, 3 महीना नहीं 2 महीना। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। हाँ, अमाउंट में क्या, रेट में क्या, टाइम में क्या, क्योंकि बुरा टाइम आ जाएगा अगर गलत सलत कुछ कर लोगे तो। अच्छा कितना आता है, वेल वही ना, शस्त्र क्रिया, ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल सब कर लो, आपको आ जाएगा 400, नहीं ये 300 है, 400। ओके, वो 400 जाके आप ऐड कर लो इंटरेस्ट में और उसका टोटल नीचे लिख लेना 3400। प्लीज़ नोट, ये आगे जाके होगा बट मैं अभी बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट या तो कैश के साथ कभी जुड़ता है या तो नए बिल के साथ भी जुड़ सकता है। वो मैं डिसाइड नहीं करता, वो क्वेश्चन हमको बोलता है। बट कैलकुलेट जब होगा हमेशा न्यू बिल अमाउंट, हमेशा, वो वरुण हो, वो आमिर हो, वो आने वाली प्रॉब्लम में शाहरुख आएगा, ओके, कुछ भी हो, it will always calculate on the new bill. So right now 4 स्टेप में मैं क्या एंट्री करूँगा, वेल स्टेप 1 में 50,000 क्योंकि बिल कैंसिल हो गया, स्टेप 2 में ओके उसके बाद में इंटरेस्ट तो 400 आएगा, स्टेप 3 में पार्ट पेमेंट 3400 आएगा और स्टेप 4 में न्यू बिल 20,000। दैट इज़ द रीज़न हम ये पूरा वर्किंग रेडी रखते हैं ताकि हमारा स्टेप रुके नहीं, हमारा स्टेप आगे जाता जाए। पहला स्टेप कैंसिल कैसे करते हैं, देख कैंसिल का मतलब है
रिटर्न करने का बिल। बिल किसके पास है? वो दूर बैंक के पास है। बैंक मुझको देगा आमिर, मैं जूही को दे दूंगा। बैंक मुझको देगा, मैं जूही को दे दूंगा। तो जूही डेबिट बैंक क्रेडिट, जूही डेबिट बैंक क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री ऑफ रिन्यूअल 50,000 बीइंग बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल, मतलब नया बिल बनने के लिए पुराना बिल कैंसिल किया। स्टेप 1। स्टेप 2, चार्ज इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था? काफ़ी मारामारी हुई, काफ़ी विचार विमर्श डिस्कशन हुआ, मैंने एक्सप्लेनेशन किया, पूरी कोशिश की ये समझाने की कि ये 8 फॉर्मूला आप कैसे करते हो। 400 इंटरेस्ट है। क्या करने का? अरे वो जूही के सिर पे डाल दो। आई रिपीट माई सेल्फ, जूही के सिर पे डाल दो। ओके, डाल दिया हमने। इंटरेस्ट लिया जूही के सिर पे। जूही डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 400, जूही डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट 400 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। दी एंट्री, ये एंट्री लिखना ना, दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वो तो बहुत सिंपल है, आदत पड़ जाती है। बट डायग्राम कैसे बनाया है, उधर कैसे एरोबाजी की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो करेंगे तो मतलब आप किसी को सिखाए, वो सिखाओगे भी ना ये मेथड, वो भी समझ जाएंगे। इतना सिंपल बन गया। अच्छा, पार्ट पेमेंट में कितना? 30,000 और 400, 30,400। हमने जूही को बोला, जूही चलो पैसे दो, पैसे दो। जूही ने पैसे दे दिए। कैश डेबिट टू जूही, कैश डेबिट टू जूही, चलो भाई कर लेते हैं। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हमको बिल का पेमेंट और इंटरेस्ट दोनों साथ में मिला। नेक्स्ट 4th स्टेप, मैं बोल रहा हूँ 4th स्टेप, पर यहाँ पर जैसी गाड़ी है सीक्वेंस वैसी जा रही है। न्यू बिल, न्यू बिल कितने का? देखो ना 20,000। कैसे बनता है? वो हम बिल बनाते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो साइन करके हमको वापस देते हैं, उसकी एंट्री होती है। तो बिल रिसीवेबल टू जूही, जैसे पहले बिल का किया वैसे रिपीट करते हैं, बिल रिसीवेबल टू जूही, बट नए कीमत के साथ, 20,000 कीमत के साथ। तो चलो जी लिख लेते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जूही बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। वेरी सिंपल। फिर देखिए भाई 4, 5, 6, 7 वर द 4 स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल। द मेन पार्ट, क्योंकि जो मेन पार्ट होता है एकदम सेंटर में होता है। उसी तरह ये क्वेश्चन के सेंटर में है, इस पे ध्यान हमेशा ज़्यादा देना। क्वेश्चन 1, 2, 3 रिपीट, उसको पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत बच्चे, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी, उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर होती है, तो समझने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। ओके, और वो जो सेंटेंस एक है, वो सेंटेंस अगर आप मिसअंडरस्टैंड करो तो इंटरेस्ट कितना था, उसको किधर जोड़ना था, इस पे आप गड़बड़ करोगे, और अगर गड़बड़ हो जाएगी तो चारों के चारों एंट्रीज गलत, और उसके बाद की कहानी भी गलत हो जाएगी। आगे, दीज अरेंजमेंट्स वर कैरीड थ्रू। ओके, अरेंजमेंट्स मतलब बंदोबस्त, 4 एंट्रीज का रिन्यूअल का हो गया, हमने कर लिया। जूही ऑनर्ड द न्यू बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। प्रभु थैंक यू। क्यों? जब नए डेट पर नए बिल भरने की बारी आई, समय आया, जूही ने पैसे दे दिए, कोई ड्रामा नहीं, स्टोरी खत्म हो जाती है। तो जब जूही ने पैसे दिए, तो जूही ने पैसे दिए, एक एंट्री, हमने बिल दे दिया, दूसरी एंट्री, वो दो को हम मिक्स करके एक बना देते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल। सो ये एंट्री हमने बहुत बार किया है पहले भी, बीइंग बिल ऑनर्ड। इसके बाद में एक ग्रैंड टोटल आता है, विच इज़ द कंप्लीट टोटल ऑफ द डेबिट एंड द क्रेडिट। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दरख्वास्त है, प्लीज़ डू इट, क्योंकि स्पेशली 2,70,800 if you are somebody who is so confident in the subject in this chapter कि sir I do it correctly,
हाँ, then don't give any excuse to the examiner to cancel even ittusa marks. Get the grand total done. Today I'll be very frank to you. सच क्या एंट्री मैंने नया नहीं पढ़ाया, हाँ, बट कभी कभी थोड़ा मैथ्स का पंगा हो जाता है. परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंटेज. तो जब परसेंटेज आता है तो 8 फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. अमाउंट क्या, रेट क्या, टाइम क्या, एंड होपफुली ना आपका टेबल भी सही होगा तो कैलकुलेशन भी सही से हो जाएगा. आई होप जो आपको आज के प्रॉब्लम में नया पढ़ाया गया कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से आपको समझ में आया, और अगर पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है लाइक ज़रूर कर लीजिए. दोस्तों तक लेक्चर के बारे में, चैप्टर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, चैनल के बारे में, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में फॉरवर्ड कर दीजिए उनको, ओके, ताकि उनको भी पता चले, उन्हें भी मज़ा आए और उन्हें भी समझ में आए. ओके, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में थोड़ा कम, हिंदी में थोड़ी ज़्यादा चर्चा करूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदी की भाषा थोड़े बेहतर तरीके से समझ में आती है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी not to speak in English, which is very simple, okay, thankfully, because of all the good training that I have received through different teachers in my past academic life. But just to make sure that the reach of the lectures is not just to the urban part of the state of Maharashtra, but even to the rural part of the state of Maharashtra, I am trying my best to speak in a language which would be convenient for everybody else also. Okay, that is it for me for today. If you did like the lecture, do like the lecture, and do subscribe if you are new here. Press the bell icon and take care of your seniors and juniors and of your lovely family members till the time we meet again. Good day to all of you. God bless. Ta-ra.